ਦਾ ਗੱਲ ਕਰੇ। ਗਾਲਬ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸਤਕਬਲ ਕੀ ਹੈ ਜਰਾ ਪਸ਼ੀਨ ਕੋਈ ਕਿਹਦਾ ਮੁਸਤਕਬਲ ਕਿਹਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤਮਾਸ਼ਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਇਰਾਨ ਵਾਲਾ ਮੈਂ ਤੇ ਅੱਜ ਬੜੀ ਡਿਟੇਲ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਪਿਛਲੇ ਮੈਂ ਲੱਭਦਿਆਂ ਸੁਣਿਓ ਯਾਰ ਸੁਣਿਓ ਪੂਰਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਡਿਟੇਲ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 10-15 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਦਾ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ। ਖੈਰ ਮੇਰਾ ਤੇ ਇਹ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ ਇਹ ਹੁਣ ਜੋ ਵੀ ਹੋਇਆ ਨਾ ਅਸਲ 'ਚ ਨਾ ਸੌਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਕੱਟਣ ਲੱਗੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਇਹ 2-3 ਹਫ਼ਤੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ 4 ਹਫ਼ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਕਰੀਨ ਉੱਤੇ ਆਂਦੀ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਲੱਭਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਸਕਰੋਲ ਕਰਕੇ। ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਗਾਲਬ ਕਮਾਲ ਲਾਈਵ ਨੰਬਰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ ਨਾ। ਪਤਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ 10 ਵਜੇ ਆ ਜਾਣਾ ਮਗਰ ਮੈਂ ਲੱਭਦਿਆਂ ਮੈਨੂੰ ਪੌਣੇ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾ 499 ਹੈ ਨਾ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਨੰਬਰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ। ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ 490 ਕਰਨੀ ਹੈ ਸਰਚ ਠੀਕ ਹੈ ਸਮਝ ਗਏ ਹੋ ਨਾ ਤੇ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੋਏਗੀ। ਨੰਬਰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਆ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕੀ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਤਮਾਸ਼ਬੀਨੀ ਜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਗਾਲਬ ਕਮਾਲ ਉਹ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕੱਢ ਕੇ ਫੜਾ ਦਿੰਦੀ ਉਹਨੂੰ ਗਾਲਬ ਕਮਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਟਿਕ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡੇ ਲੈਵਲ। ਉਹਨੂੰ ਗਾਲਬ ਕਮਾਲ ਲਾਈਵ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਐਪੀਸੋਡ ਨੰਬਰ 499 ਇੰਜ ਲਿਖਿਆ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲਾਈਵ ਤਾਂ ਲੱਭ ਹੀ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਬਸ ਮੈਂ ਲੱਭਦਾ ਨਾ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਲੱਭੀ 12-14 ਵੀਡੀਓ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਰਨਾ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਬਲਕਿ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੇ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਵੀ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਚਲੋ ਇਹਦਾ ਫਿਰ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਕੋਣੀ ਜੀ ਇੰਨਾ ਹੀ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਲੱਭਦੀ ਪਈ। ਹਾਂ ਚਲੋ ਸਹੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ। ਬਸ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਇਹ ਜੰਗ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਪਾਸੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਖਿਆਲ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਅਗਰ ਈਰਾਨ ਨੇ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਵੈਪਨ ਬਣਾ ਲਏ ਜਾਂ ਨਾ ਬਣਾਏ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਤੇ ਸਾਰੇ ਅਰਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਵੈਪਨ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਈਰਾਨ ਕੋ ਵੀ ਡਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਨਾ। ਈਰਾਨ ਨੇ ਕੋਈ ਕਸਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਹੁਣ ਨਾ ਈਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਤੇ ਫੁੱਲ ਡਿਆ ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਾਹਿਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਵੈਪਨਸ ਵੱਲ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਨਾ ਲੰਮੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਜੰਗ ਦਾ ਕੀ ਮੁਸਤਕਬਲ ਮਤਲਬ ਅਗਲੇ ਫੌਰੀ ਇਹ ਹੁਣ ਕੁਝ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁਣ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਖਤਰਨਾਕ ਵੀ ਫੀਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ है ना मेरे ख्याल में अभी खार्ग आइलैंड के ऊपर ना अमेरिका कब्जा कर सकता है और फिर वहां से डायलॉग शुरू हो सकता है। डायलॉग शुरू हो सकता है या काम आगे हो सकता है? नहीं डायलॉग शुरू हो सकता है क्योंकि अगर अमेरिका कोई चीज तबाह नहीं करता विक्ट्री दा निशान बना हाँ अमेरिका ऐ कहेगा कि खार्ग साडे कोले हुण ईरान साडे नाल हमारे साथ डायलॉग करे और जब डायलॉग होगा तो उसमें ईरान को ये कहा जाएगा कि तुम हमले बंद करो। ईरान कहेगा जी कि हमारी ये डिमांड्स हैं, ये कहेंगे हमारी ये डिमांड्स हैं। चाइना बैठ जाएगा, पाकिस्तान बैठ जाएगा, हो सकता है रशिया बैठ जाए साथ और फिर उसके बाद अगर मेज ते गालब में बैठ जांदे ने तो फिर ते ईरान ही जीत गया ना। देखो ना फिर वो ਜਦੋਂ ਖਾਰਗ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲੇਗਾ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਐ ਵੀ ਫਿਰ ਅਮਰੀਕਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਾਰਿਆ ਹੋਏਗਾ ਨਾ। हाँ ठीक एक मतलब खार्ग पे कब्जे का मतलब क्योंकि खार्ग ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਇਸ਼ਤ ਦੇ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਉਹ ਨਹੀਂ ਉਹ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਨਾ ਮੈਂ ਕਿ ਕੀ ਮਸਲਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਖਾਰਗ जो है और गहरे पानी नहीं ना है हाँ उनके पास उनकी कोस्ट पे कहीं भी कोई डीप सी पोर्ट बन नहीं सकती। उनकी है कि डीप सी पोर्ट है जहाँ पे टैंकर आते हैं तेल भरते हैं और जाते हैं। अगर अमेरिका उधर कब्जा कर लेता है तो इसका मतलब है कि ईरान की पूरी इकोनॉमी अमेरिका के हाथ में और अमेरिका फिर वहां से बैठ के इनसे बात कर सकता है कि यार खार्ग तुम्हें वापस करते हैं, तुम ये शर्तें मानो ठीक है। और वो फिर ये कह सकते हैं कि ठीक है जी हम हमले बंद करते हैं, तुम ये शर्तें मान लो। चलो जी कोई 5-10 शर्तें अमेरिका देता है, 10 वो देते हैं, 4 ईरान की मान लो, 5 अमेरिका की मान लो ठीक है। ये बात तो बार्गेनिंग हमेशा होती है जी वो तो मतलब चीज़ां रखते उन्होंने 3 ਜਿਹੜੇ ਰੱਖੇ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਈਰਾਨ ਦੇ ਸਦਰ ਨੇ ਰੱਖੇ ਨੇ 3 ਪੁਆਇੰਟ ਪਿੱਛੇ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗੋ ਜੁਰਮਾਨਾ ਦਿਓ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਬਸ ਹੈ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਬਹੁਤਾ ਮੰਗੇਗਾ ਤੇ ਥੋੜਾ ਮਿਲੇਗਾ ਨਾ। देखो बहुत सारी दुनिया कह रही है कि ईरान सब कुछ जीत गया, मैं गल नहीं मानता कोई। अमरीका ही है, अमरीका ਨੂੰ ਇੰਜ ਹਰਾਣਾ ਐਡਾ ਗੱਲ ਭਾਈ ਸੌਰੀ ਜੀ ਕੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਜੰਗ ਨੇ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਵਾਲੇ ਮਲਟੀਪੋਲਰ ਕੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮਲਟੀਪੋਲਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹਲੇ ਵੀ ਕੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ मतलब नहीं मेरे ख्याल है मल्टीपोलर ते हो गई है ना। देखो इतना नुकसान अमेरिका का इतना नुकसान नहीं हो सकता था यूनिपोलर वर्ल्ड में, ये बात मानने। देखें ईरानियों ने पिछली बार भी 12 दिन वाली जंग में चलाए हैं वेपन मिसाइल, निशाने पे लगता ही नहीं था कोई।
अब ये बात है कि अब जो टारगेटिंग है वो रशिया और चाइना की मदद से कर रहे हैं, ਵੇਖੋ ठीक है, तो तभी ਬਿਲਕੁਲ उनके ਠੀਕ ਹੈ, निशाने लग ਇਹ गए। ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਹਕਮਤ ਅਮਲੀ ਹੈ, ਜੋ ਕੁਛ ਉਹਨੂੰ ਮੁਯੱਸਰ ਆ ਗਿਆ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਾਲ ਲੜਨ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਮਗਰ ਯੂਨੀਵਰਸ ਤਾਕਤ ਦੇ ਉਹਦੀ ਇਕੱਲੇ ਦੀ ਇਹਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤਾਕਤ ਉਹ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ ਉਹਦੇ ਆ ਕੇ ਗੱਲ ਪੈ ਗਿਆ, ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਚੰਗਾ ਮਾੜਾ ਚੁੰਡੀ ਵੱਡੇ ਚੱਕ ਵੱਡੇ ਜੋ ਵੀ ਕਰੇ ਮਤਲਬ ਆਪਦੀ ਜਾਨ ਛੁਡਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਕੋਈ ਲੜ ਤੇ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ, ਉਹਦਾ ਆਪਦਾ ਦਫਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਕਿਹੜੀ ਪਾਵਰ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕੇ ਜਿਹਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਮਾਮਾ ਬਸ ਕਰ ਜਾ, ਗਲਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਸੁਪਰ ਪਾਵਰਾਂ ਦਾ ਮੇਨ ਮਸਲਾ ਐਵੇਂ ਨਾ ਕਿ ਕਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਣਗੇ ਨਾ, ਜੀ 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 ਉਹ ਕਦੀ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਚਾਈਨਾ ਵੀ ਅਗਰ ਕਿਧਰੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੋਏ ਜਾਂ ਰਸ਼ੀਆ ਕਰਨ ਡਿਆ, ਅਮਰੀਕਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਸਾਹਮਣੇ ਇਸ ਅਸੂਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ। ਦੇਖੋ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਆ ਗਿਆ ਸਾਹਮਣੇ ਯੂਕਰੇਨ ਚ, ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਨਾ, ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ ਸਾਹਮਣੇ। ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏਗਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਆਏਗਾ। ਠੀਕ। ਇਹਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਹਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਅੱਜ ਕੱਲ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਓਵਰ ਐਸਟੀਮੇਟ ਵੀ ਨਾ ਕਰੋ, ਅੰਡਰ ਐਸਟੀਮੇਟ ਵੀ ਨਾ ਕਰੋ, ਤੇ ਸਮਝਾਓ ਓਵਰ ਜ਼ਰਾ। ਐਸਟੀਮੇਟ ਵੀ ਨਾ ਕਰੋ। ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜਿਵੇਂ ਅਮਰੀਕਾ ਯੂਕਰੇਨ ਚ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਇਨਵੋਲਵ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ ਸੁਪਰ ਪਾਵਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹਾਂ ਜਾਂ ਰਸ਼ੀਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸੁਪਰ ਪਾਵਰ ਹੈ। ਇੰਜ ਅਗਰ ਹਮ। ਚਾਈਨਾ ਜਾਂ ਰਸ਼ੀਆ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਇਨਵੋਲਵ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਇਹਦਾ ਸਬੂਤ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਹੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਵਾਹਿਦ ਪਾਵਰ ਹੈ। ਇਹ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਉਹ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਉਹੀ ਫਿਰ ਨਹੀਂ 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 ਨਹੀਂ, ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਗੱਲ ਫਿਰ ਲੈ ਗਏ ਹੋ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਪੈਰਲਲ ਵਿਖਾ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਯਾਰ। ਵੀ ਬਸ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਗੱਲ। ਹਾਂ, ਇਹਦੇ ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਹੀ ਵਾਹਿਦ ਸੁਪਰ ਪਾਵਰ। ਦੁਨੀਆ ਮਲਟੀਪੋਲਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਹਾਂ। ਅਸਲ ਚ ਗੇਮ ਐ ਸੀ ਕਿ ਯੂਨੀਪੋਲਰ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਜਿਵੇਂ ਇਰਾਕ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਈਨਾ ਤੇ ਰਸ਼ੀਆ ਨੇ ਕੁਝ ਵੀ ਹਾਂ। ਇੰਟਰਫੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਯੂਨੀਪੋਲਰ ਹਾਂ। ਮੂਵਮੈਂਟ ਸੀ ਅਸਲ ਚ, ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜਾਂ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਚ ਚਾਈਨਾ ਨੇ ਤੇ ਰਸ਼ੀਆ ਨੇ ਕੋਈ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਦੇ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂ। ਹੁਣ ਇਰਾਨ ਚ ਫੁੱਲ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਦਾ ਸਬੂਤ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ। ਯੂਨੀਪੋਲਰ ਵਰਲਡ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਯੂਨੀਪੋਲਰ ਹੈ ਹਾਂ। ਸੀ ਤੇ ਵੀਅਤਨਾਮ ਚ ਵੀ ਜਾਂ ਨਾਰਥ ਕੋਰੀਆ ਚ ਚਾਈਨਾ ਦੀ ਤੇ ਰਸ਼ੀਆ ਦੀ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਉਦੋਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੂਹੇ ਤੇ ਆ ਗਏ ਸੀ। हाँ। अगर वो बूहे पे ना होते, दरवाजे पे ना होते, तो वो नहीं करता वहां इन्वॉल्वमेंट, हाँ। ठीक है। तो अब नहीं जो थे, मेन दस चीज है हजार। वो ये है कि यूनिपोलर दुनिया नहीं रही। अब अमेरिका का किरदार जो है वो उसमें अभी डिसाइड होना बाकी है। जी अमेरिका का किरदार डिसाइड होना बाकी है कि अमेरिका की इन्वॉल्वमेंट और ताकत उस पर कितनी रहेगी। दूसरी बात यह है कि अमेरिका को कोई अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकता। यस। देखें इस जंग से जो भी सबक सीखे जाएंगे, अमेरिका हाँ। अगले 10 साल में इन सब के सबक सीख के इसके हल भी निकाल लेगा कि छोटे ड्रोन को बिल्कुल फेंकना तो कैसे बिल्कुल निकाल, राइट कैसे लेना है। बिल्कुल ये कोई बिल्कुल बड़ी right। बात नहीं है। हाँ। इसका कोई वो मसला नहीं है। अमेरिका अगर आज चाहे कि ड्रोन्स की आर्मी अगर वो खड़ी करना शुरू कर दे तो अमेरिका को फिर चाहे चाइना भी मैच ना कर पाए, ठीक है। तो अमेरिका के लिए इंपॉर्टेंट ये बात है कि भाई हमने इससे क्या सबक सीखना है। हाँ। तो वो मुझे लगता है कि सीखा जाएगा। और ये जो वार मॉन्गर हैं, एक तो हाँ। बात यह है कि वार मॉन्गरिंग का मसला खत्म होना चाहिए। दूसरी मेन जो बात है वो ये है कि भाई आप अपने पेंटागन और इंटेलिजेंस एजेंसीज की असेसमेंट को क्यों अंडरमाइन कर रहे हैं। जाहिर बात है कि जंग तो तब जीती जाएगी ना जब जंग उनकी इंटेलिजेंस की बेस पे लड़ी जाएगी। अभी इंडिया जंग जो हार गया वो क्यों हारा, इसलिए इंडिया भी इंटेलिजेंस की गल नहीं सी मनन दिया। आर्मी चीफ के बजाय एयर चीफ के बजाय मोदी आप ही बनया सी अब्बा सारे, ठीक है। ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਆਹੀ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਵੀ ਅੱਬਾ ਜੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੱਖ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਹੁਣ ਫਿਰ ਮਸਲਾ ਜੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਸਤ ਏਸ਼ੀਆ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ, ਛੱਡ ਜਾਏਗਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਪੱਕਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ? ਦੇਖੋ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਰੋਲ ਤੇ ਇੱਥੇ ਰਹੇਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੰਜ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਥੋੜਾ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਏ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਮੇਨ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਅਮਰੀਕਾ ਕੀ ਲੂਜ਼ ਕਰਦਾ। नहीं और मेरा दो चीजें आपस में मशरूत हैं कि ईरान को क्या गेन होता है और अमेरिका को क्या लूज होता है। हाँ ठीक है ठीक है। ईरान उतना गेन नहीं कर पाएगा जितना समझा जा रहा है और अमेरिका उतना लूज नहीं करेगा जितना समझा जा रहा है। नहीं लूज करने वाली तो अमेरिका की गल ही नहीं पाई जी। टाइमिंग उनकी भैन चो दी हिकमत अमली भी हो सकती है, कुछ भी कर सकता है। वो फ्लैग ऑपरेशन करके भी तमाशा कर सकता है, दुनिया को फिर नाल ला सकता है। कोई बड़े राह ने ताकत के बड़े मसले होते हैं जी। मतलब दूसरा मसला है इसराइल का। जंग जिहड़ी हो गई हुण इंटरस्ट दुनिया दा ते उस तरह नहीं रहेगा ना इन्हां मुल्कां च ते भाई जो बन चुका सी वो काफी बड़ा प्रॉब्लम हो गया ना। देखो एक गल है, हुण Amazon था, Amazon, Nvidia,
ठीक है, IBM, माइक्रोसॉफ्ट, इन सब ने अपने दुनिया की डाटा हर सेंटर चीज लगाए थे। हाँ, इन्होंने डाटा सेंटर लगाए हुए थे, बड़े बड़े AI डाटा सेंटर ये मिडल ईस्ट में लगा रहे थे। वो इसलिए लगा रहे थे कि ये इसे सेफ समझ रहे थे। इसराइल में डाटा सेंटर लगना था, इसराइल में टेस्ला का लगना था, इसराइल में इंटेल की फाउंड्री बननी थी, सब कुछ कैंसिल हो चुका है। ठीक है, इधर से सब कुछ कैंसिल हो गया। क्यों? क्योंकि भाई अमेजोन वाला क्यों लगाएगा अपना सर्वर उधर जहां पे किसी भी दिन मिसाइल चल सकता है। जी ठीक है, अमेरिका के लिए अभी, और दूसरी बात है कि ये सब कंपनियों ने अब अभी सदर ट्रंप पे प्रेशर डाल रहा है। आप मतलब ये बात मान लें कि माइक्रोसॉफ्ट वाले या अमेजोन वाले या ये सारे अगर प्रेशर ट्रंप पे डालें तो ट्रंप के ऊपर प्रेशर पड़ता है। और दूसरी बात है, ये अमेरिका के रियल बिजनेस हैं जो कि अमेरिका के मुस्तकबिल से वाबस्ता हैं, ये सारे जी बिजनेस AI वाले। जी तो जाहिर बात है, अमेरिका के AI डाटा सेंटर देखें, इंटेल का AI डाटा सेंटर अमेरिका का डाटा सेंटर है। ठीक है, बिल्कुल या फिर औरों के एनवीडिया के AI डाटा सेंटर, भाई ये अमेरिका के डाटा सेंटर हैं और अमेरिका के एसेट है, स्ट्रेटेजिक एसेट हैं ये सारे के सारे। तो ये इन चीजों को, और बात तो वही है ना कि सोचा क्यों नहीं गया कि हमारे इतने एसेट्स हैं। और हाँ सारी बात है कि एज ए कंट्री हमें नुकसान है ना इस बात का कि हमारे जो डाटा सेंटर्स हैं वो जो मैं ਇਹੋ यूएई ਤਾਂ में है ਸੋਚਣਾ वो ਵੀ खराब ਖਾਲੀ हुआ ਕੋਈ हो ਈਗੋ गए। ਨਾਲ ਟਰੰਪ ਦੀ ਈਗੋ ਨਾਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਸਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਯਾਰ ਆਖਰ हाँ ਜੰਗ ਲੜੀ ਕਿੰਨੇ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਗੱਲ ਗਈ ਜਦੋਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਇਹ ਧਿਆਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਅਸਲੇ ਦੀ ਦੌੜ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਤੇਲ ਦੀ ਦੌੜ ਹੈ ਇਕਤਸਾਦੀ ਰੌਲਾ ਹੀ ਹੈ ਸਾਰਾ ਨਹੀਂ, ਇਕਤਸਾਦੀ ਰੌਲਾ ਤੇ ਹੈ ਵੇ, ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਉਸ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ ਇੱਕ ਐਂਗਲ ਹੀ ਹੈ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਮੰਨਣਾ ਹੀ ਸਾਰਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਇੱਕ ਐਂਗਲ ਹੀ ਹੈ ਇੱਕ ਐਂਗਲ ਉਹ ਵੀ, ਉਹ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਮੇਜਰ ਐਂਗਲ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮੇਜਰ ਐਂਗਲ ਹੈ ਵੇ। ਪਰ ਮਸਲਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਕਨੋਮੀ ਨੂੰ ਅੰਡਰਮਾਈਨ ਕਰਕੇ ਤੇ ਮੇਨ ਗੱਲ ਹੁਣ ਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜੀ ਅਸੀਂ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀਕਲ ਵਾਰ ਲੜੀ। ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਆਪਣੀ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀਕਲ ਵਾਰ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰੱਖੋ ਭਾਈ। ਹਾਂ, ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਕਨੋਮਿਕ ਜੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਗੋਲ ਬੜਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੈੱਟ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਅਸੀਂ ਅਚੀਵ ਕਰਨਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਕਨੋਮੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜੰਗ ਲੜਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਗੰਦ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਉਨੀ ਤਵਾਕੁਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੇਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣਾ ਤੇ ਫਲਾਣੇ ਨੂੰ ਇਹ ਹੋਣਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਫਾਇਦਾ ਹੋਣਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਬੈਲੈਂਸ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਕਨੋਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜੰਗ ਕਰਨ ਨਾਲ ਬਿਹਤਰ ਡਾਇਲੌਗ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, वो सब तो अच्छी गल है। अच्छा, लाइकॉनिक्स ने पूछा US will capture it. The question is, what is Iran's game plan? We know they have thought it through. देखें, मेरे ख्याल में ईरान ने अपना गेम प्लान जरूर थॉट इट थ्रू किया होगा, मगर मसला ये है कि देखें, एक बात आप मान लें, ईरान ने अपना गेम प्लान जितना भी जबरदस्त तरीके से थॉट इट थ्रू किया हो, मगर ये आप माने कि जो कमजोर होता है ना, उसका गेम प्लान में लूप होल्स बहुत सारे होते हैं उसमें। ठीक है, ईरान को ये एडवांटेज इसलिए मिला है कि स्ट्रेटेजिक गलती की गई है दूसरी तरफ से, वरना ये एडवांटेज ना मिलता। फर्ज करें कि अगर अग्रेसर ईरान होता और इसराइल और अमेरिका अग्रेसर ना होते, तो क्या फिर भी अरब जंग में ना शामिल होते? एक छोटा सा सिंपल सा सवाल है। फर्ज करेंगे ईरान पहले मारना शुरू कर देता, तो क्या फिर भी अरब जंग में ना शामिल होते? और क्या फिर भी दुनिया अमेरिका के और इसराइल के पीछे ना खड़ी होती? क्वेश्चन ये है सबसे इंपॉर्टेंट। क्योंकि ये मिस कैलकुलेशन इसको कहते हैं, जो बड़ी मिस्टेक होती है। भाई देखें, अगर एग्रेशन ईरान की तरफ से हुआ होता, और देखें दुनिया में ये काम होता आया है, सदाम से एग्रेशन करा दिया गया था। आप खुद ये सोचें, हिस्ट्री को कभी भी, हिस्ट्री का शीशा रख के बगैर आप नहीं देख सकते मुस्तकबिल की शक्ल। ठीक है, सदाम से गलती कराई गई थी, सदाम को कहा गया था कि कुवैत पे हमला करो। ये भी एक बहुत बड़ा इंटेलिजेंस और स्ट्रेटेजिक फेलियर है कि ये ईरान को इस बात पे कायल क्यों नहीं कर सके कि आप कर दो। अब आपको फिर मैं अगली बात बता देता हूँ। तुसी कह रहे सी कि दूजियां सुपर पावरां नहीं ने। देखो, ईरान अगर कला हुंदा ना, ते ईरान भी ਉਹੀ गलती करदा ਜਿਹੜੀ सद्दाम ने ਕੀਤੀ ਸੀ। ईरान नाल चीन ਤੇ रूस है ने, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਰੇਗਾ। ਪਾਵਰ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਹੌਸਲਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਦਰ ਕੋ ਉਹ ਮਸਲਾ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਕੁਝ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ? ਨਤਨਯਾਹੂ। ਕਿਉਂਕਿ ਨਤਨਯਾਹੂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੜਿੱਕੀ ਚ ਉਹ ਫਸਿਆ ਅਸਲ ਚ।
ਹਾਂ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਛਡਾ ਲੇ, ਟਰੰਪ ਆ ਜਾਏ ਮੇਰੀ ਜਗ੍ਹਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਬੜੇ ਟਿਕਟ ਚਿਰ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਆ ਜਾਏ, ਮੈਂ ਛੁੱਟ ਜਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸਾਰਾ ਅਸਲ ਚ ਮੇਨ ਟਰੰਪ ਹੈ। ਨੂੰ ਛਡਾਵਣ ਆਇਆ, ਵੇਖੋ ਹਾਂ ਬਲੇਮ ਗੇਮ ਹਾਂ, ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਗੇਮ ਹੈ ਹੀ ਆ ਵੇ। ਐਪਸਟੀਨ ਫਾਈਲ ਬਲੇਮ ਬਾਰੇ ਗੇਮ ਲੋਕੀ ਹੁੰਦੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨਹੀਂ। ਚੰਗਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਇਆ ਇਹ, ਉਹਨੇ ਬੜਾ ਈਜ਼ੀ ਲਿਆ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਜਨਾਬ ਕਰਾਂਗਾ, ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਸਮਝ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ 9/11 ਨੂੰ ਸੀਰੀਅਸ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਮਿਸਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਉਹ ਸਮਝਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ 9/11 ਨੂੰ ਸੀਰੀਅਸ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਐਨਜੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ 7 ਅਕਤੂਬਰ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਸੀਰੀਅਸ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਦਰੁਸਤ ਐਂਗਲ ਹੈ, ਮਗਰ ਇੱਕ ਐਂਗਲ ਇਹਦਾ ਇਹ ਵੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਖਤਮ ਕਰਾਂਗਾ, ਥੱਲੇ ਆਵਾਮ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਤੇ ਜਨਾਬ ਮੈਂ ਫੜ ਲਓ ਕਰਾ ਦਿਆਂਗਾ। ਉਹਨੇ ਕੁਰਦਾਂ ਵਾਲੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਬਲੂਚਾਂ ਵਾਲੇ ਵੀ। ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੈਸੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸਰਾਈਲ ਨੂੰ ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਜਿੱਥੇ ਦਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਨਾ, ਸੁਣੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸਰਾਈਲ ਨੂੰ 100% ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਚੇਂਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਆਣੀ ਬੰਬਾਰੀ ਨਾਲ। ਉਹ ਅਸਲ 'ਚ ਉਹਦਾ ਐਂਡ ਗੋਲ ਹੈ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬੂਟਸ ਔਨ ਗਰਾਊਂਡ ਹੋ ਜਾਣ, ਕਿ ਕੋਈ 1 ਮਿਲੀਅਨ ਫੌਜੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅਮਰੀਕੀ ਆ ਜਾਏ। ਮਤਲਬ ਸਟਾਰਟ ਤੋਂ ਤਾਂ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਇੰਜ ਹੀ ਫੂਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇੰਜ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਵੇਖੋ ਨਾ, ਗੱਲ ਤੇ ਬੇਸਿਕ ਉਹਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਇਸਰਾਈਲ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੇਖੋ ਜੀ, ਇਸਰਾਈਲ ਦੇ ਖਾਬ ਤੇ ਫੇਰ ਹੀ ਪੂਰੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਅਰਬ ਵਰਲਡ ਸਾਰਾ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਏ, ਇਰਾਨ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਏ, ਮੁਆਸ਼ੀ ਤੌਰ ਤੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣ, ਉਹ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਨਿਕਲੇ ਤੇ ਆਪਦਾ ਗ੍ਰੈਂਡਡ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਰਗੜਾ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਆਪਦਾ ਮੁਲਕ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲੇਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਉੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ। ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਖਾਬ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਜੋ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹਦਾ। देखो ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ख्वाब है ना, इस ख्वाब के पीछे नजरिया है, मजहबी नजरिया, आइडियोलॉजी जो है ना वो सबसे खतरनाक चीज होती है। अगर जंग आप आइडियोलॉजी की वजह से शुरू करते हैं, ठीक है, कोई बंदा इकोनॉमी की वजह से जंग शुरू करता है ना, वो बात समझ आती है और उसका एक क्लियर गोल होता है। आइडियोलॉजी की कोई क्लियर गोल नहीं, कोई असूल नहीं क्या क्लियर कुछ है ही नहीं है। भाई आप ये मान रहे हैं कि आपने ग्रेटर इसराइल बनाना है, यार मुझे बताओ कैसे बनेगा। ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੋ, ਮੈਂ ਕਿਧਰੋਂ ਕੋਡ ਕੀਤੀ ਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਕਿ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਪੈਸੇ ਵਾਸਤੇ ਇਮਾਨ ਵੇਚ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਹਾਂ, ਤੇ ਇਮਾਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾਨ ਵੇਚ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਪੈਸੇ ਵਾਸਤੇ ਘੱਟ ਕੋਈ ਹੋਵੇਗਾ ਨਾ, ਕੋਈ ਪਾਗਲ ਕੋਈ ਜਾਨ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਦੇ ਦੇ, ਮਜ਼ਹਬ ਵਾਸਤੇ ਹਰ ਬੰਦਾ ਜਾਨ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਹੁਣ ਇੰਝ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਇਹਦੇ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਦੇਖੋ ਲੋਕੀ ਹੁਣ ਨਤਨयाहू है, मेरे ख्याल है कि बहुत ऐसा तो नहीं है कि एजुकेटेड आदमी नहीं होएगा, मगर प्रॉब्लम है कि ਜਦੋਂ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਅਸਲੀ ਯਹੂਦੀ ਰਿਲੀਜਨ 'ਚ ਬਿਲੀਵ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਆਦਮੀ ਹੈ। ਉਹ ਯਕੀਨ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਇਸਰਾਈਲ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਬਣੇਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਇਹ ਸਮਝਦਾ, ਉਹਦੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਗੱਲ ਹੈ ਵੇ, ਉਹ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਉਹ ਜੀ ਅਸੀਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਉਹ ਇਸਰਾਈਲ ਦੁਬਾਰਾ, ठीक है। मगर प्रॉब्लम है कि वो तो नहीं बन सकता ना। सिंपल जी गल है कि 7 मिलियन जूस ने, 70 लाख, मतलब 70 मिलियन ने कि 7 मिलियन, ठीक। तो यार तुसी इराक भी खाली करा लो, तुसी सारी दुनिया खाली करा लो, तो कित्थों पूरा करोगे? बंदा कित्थों पूरा करे? जमीन ना ते मुल्क नहीं बनते, वो तो बंदियां ना बनते ना। हुण प्रॉब्लम जेड़ा मेन है वो है ये कि देखो ये सारियां मिसकैलकुलेशंस ने। मेरे ख्याल च हमास ने एक मिसकैलकुलेशन की थी, उन्होंने सोचा कि असी ला जाएंगे, मतलब हम हॉस्टेजेस ले जाएंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। उनको नहीं पता था कि इसराइल से कितना शदीद रिस्पॉन्स आ सकता है। हाँ ये हो सकता है वरते गए ने, उन्होंने ईरान भी वरतिया हो सकता है, उन्होंने रशिया बिल्कुल इंज हो सकता है कि पुटिन ने वरतिया होए। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਉਸ ਦਿਨ ਬਲੀਵ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਗੱਲ ਭਾਈ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਆਖਿਆ ਨਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 1000 ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਇਹ ਜਨਾਬ ਇਹਦੇ ਬਦਲੇ ਤੁਸੀਂ 10000 ਦਾ ਕੋਡ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹਾਂ ਤੇ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਗਲਤ ਐਸਟੀਮੇਟ ਮੇਰਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਦੋਂ ਬਲੀਵ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦਾ 10,000 ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਜਨਾਬ 100 ਦੇ ਬਦਲੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ 1000 ਦੇ ਬਦਲੇ 10000 ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ, 10 ਗੁਣਾ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ, ਮਗਰ ਉਹ ਤੇ 70 ਗੁਣਾ ਰੱਬ ਵਾਲਾ ਹਿਸਾਬ। ਉਹ ਤੇ ਮਤਲਬ 10 ਗੁਣਾ ਕੀ 70 ਗੁਣਾ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ मेरा ख्याल है ये बिल्कुल हो सकता है, लोगों को भी समझ आ जाए, मैं बार बार पंजाबी पे आ जाना, ये बात बिल्कुल हो सकती है कि ये इसके पीछे केजीबी हो। इसके पीछे जारी बात है कि केजीबी ने ईरान को कहा होगा कि आप केजीबी भाजी ਅਸੀਂ ਤੇ ਹਟਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਉਸ ਵਕਤ ਦੇ ਲੋਕ केजीबी ਬਹੁਤ, ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਸਾਰਾ। ਪੁਟਿਨ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਵੀ ਤਾਂ ਵੇਖੋ ਨਾ,
ਪੁਟਨ ਕੀ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਜਰਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਖਰੀ ਬੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਜਮੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਗੋਲੀ ਲੈ ਕੇ ਖਲੋਤਾ, ਪਿਸਤੌਲ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ, ਕਿੱਡਾ ਦਲੇਰ ਆਦਮੀ ਹੈ। मतलब पुतिन भी तो एक करतार है ना हिस्ट्री का। देखें अभी लाइकॉनिक्स कह रहे हैं नहीं गालिब हमास वाज डेस्परेट, बिल्कुल हमास डेस्परेट था ना। देखें जो भी आदमी होता है जिसे पता होता है कि काम लेना है, तो जो दुनिया के सबसे शातिर लोग होते हैं ना, वो लोगों की डेस्परेशंस को नापते हैं कि कौन किस बात के लिए कितना डेस्परेट है, कि इस बात के लिए ये मरने मारने के लिए तैयार है कि नहीं। तो उनको पता था, जाहिर बात है, सऊदी इसराइल गल्फ पैक्ट जो हो रहा था और जो सारा कुछ चल रहा था, वो हमास को खतरा था कि यार ये तो हमें बेच के बस निकलने लगे हैं, और उसको ये पता था कि मैं यूक्रेन में फंसा हूं और मैं जलील हो रहा हूं, तो चलो इनको भी जलील कराओ। तो उसने क्या किया, ये काम करा दिया। और अगर उन्होंने ये कैलकुलेशन की है, यानी केजीबी ने और रशिया ने, तो फिर दुनिया सारी को मान लेना चाहिए, जैसे पाकिस्तान में एक जरदारी सब पे भारी, तो फिर मान लो कि पुतिन से ज्यादा समझदार आदमी इस वक्त ग्लोबल सियासत इस वक्त तो कोई नहीं है, गालिब इसमें तो कोई डाउट नहीं, फिर मानना पड़ेगा कि उससे ज्यादा समझदार आदमी फिर कोई नहीं है। कि देखें वो एक ऐसा मुल्क है जो कि तीसरे दर्जे की ताकत है इस वक्त, उनकी इकोनॉमी भी कोई इतनी तेज नहीं है, पाबंदियां उन पे लगा रखी हैं, उनके लिए जितनी इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज थी अमेरिका ने आहिस्ता आहिस्ता तबाह की है। नॉर्ड स्ट्रीम जो उसने तोड़ी, क्या कुछ तबाह किया है, एडी बड़ी रियासत, मतलब एडी बड़ी जो तबाह करके रखती है सरकार। तो ये जो सारी चीजें हैं कि, और गोली नहीं चलाई, एक गोली नहीं चलाई, अपने आप अंदरों ही तबाह हुई है। और आप ये देखें कि यूक्रेन वॉर असल में ना इस जंग के साथ पैरेलल में 1-1.5 महीने से ज्यादा नहीं चल सकती असल में। और ये बात अब पता है कि बहुत बड़े इलाके पे वहां पे कब्जा हो जाना है। और ट्रंप जो था वो एक मामले में ठीक था कि ज़ेलेंस्की अपनी जिद छोड़ दे, मगर ज़ेलेंस्की को पीछे से ये तंग कर रहे हैं यूरोपियंस। भाई लाने वाले आप चुप बैठे हैं, बोले यार, आपको आपके अच्छे इस पे व्यूज होते हैं हमेशा। नॉन कन्फर्मिस्ट है भी हैं कि नहीं है, सो तो नहीं गए कहीं? अच्छा मोमो भी चुप है, मोमो तो भैया ठीक है जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप जो पंजाबी बोलते हैं तो मुझे समझ नहीं आती। पहले भी आज स्ट्रीम में आप सबसे कम बोली हैं। और इनका गुनाह ये है, ये इतनी खूबसूरत पंजाबी बोलते हैं ना कि मैं फिर उधर ही लग जाता हूँ। मैं कल बोलूंगी ज्यादा, देख लेना। बोलते बहुत अच्छी पंजाबी है, पंजाबी बोलने का। हाँ जी, आपके क्या व्यूज हैं सारी इस बात पे जो हम कर रहे थे? गालिब आप लोग तो पंजाबी में ज्यादा बोल रहे थे। मैं इसीलिए कह रहा था ना, ज्यादा पंजाबी। चलो भाई उर्दू में चलते हैं, भाई उर्दू में चलते हैं, मसला आ रहा है, हमारे पैनल को मसला आ रहा है। I think आपने काफी अच्छी समरी दे दी है। बस यूक्रेन वॉर और रशिया वॉर इज एट पॉज। रशिया has earned कितने अराउंड $8 billion कमाए सिंस द टाइम ऑफ दिस वॉर, क्योंकि प्राइसेस 100 से ऊपर गई, 120 को टच की, अब फिर नीचे आई थी, फिर दोबारा ऊपर गई, टेम्पररी नीचे प्राइसेस, बिकॉज जो वर्ल्ड में ऑयल रिजर्व से वो डोनाल्ड ट्रंप ने रिलीज करवाए। एक तरह से थोड़ा ट्रूस तो नहीं, मतलब सीज फायर की बातें चल रही थी, तो उसकी वजह से प्राइस थोड़ी रिलैक्स होना शुरू हुई, लेकिन फिर अब 100 से ऊपर चली गई है। तो आई वुड से कि रशिया इज बेनिफिटिंग फ्रॉम इट बिकॉज वो स्ट्रोलिंग कर रहे हैं। 8 बिलियन का तेल एक हफ्ते में बेच दिया, देखें आप। उसको भाई 2 महीने पहले अमेरिका ने पाबंदियां लगाई हैं, तो आप पाबंदियां भी तोड़ रहा है, ये कौन सा नजरिया है? वही अब यूरोप भी अपनी मार्केट खोलेगा उसके लिए, रशियन ऑयल के लिए, वहां पर भी मतलब द थिंग इज दैट यूक्रेन जो है ना कंप्लीटली इग्नोर्ड है। कोई भी जो जितनी इनकी एम्युनिशंस, इनके मिसाइल्स जो हैं, वो सारे अभी कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं ईरान की तरफ, ठीक है ना, और रशिया स्टिल हैज एन अपर हैंड। और जो वो कमा रहा है इस वॉर से, वो वॉर मतलब जितनी डिले होगी उतना रशिया स्ट्रांग होगा, उसकी इकोनॉमी, जो मिलिट्री उसका कॉम्प्लेक्स है, टू मेक श्योर कि वॉर ज्यादा से ज्यादा चले, मतलब एटलीस्ट रशिया का स्ट्रांग हैंड हो कि जब नेगोशिएशन हो, और उसको जो क्या कहते हैं ईस्टर्न यूक्रेन का पूरा रीजन चाहिए, अलॉन्ग विद लेजिटिमेसी कि क्राइमिया भी अब उसका हिस्सा बन जाएगा। तो आई थिंक वेट कर रहा है पुतिन कि यूएस अपना कितना और ज्यादा नुकसान कराता है। जितनी देर ये जंग चलेगी, रशिया इज गोइंग टू बेनिफिट इन द कॉकेसस रीजन। बाकी
the thing is that एक तरह से रशिया भी affected है because Iran is a big partner, BRICS का founding member है, and a stronger Iran kind of gives face to Israel in the Middle East. Russian interests को एक तरह से वहां जब जटे हुए है ईरान के थ्रू, in the sense कि अब सीरिया उनके पास नहीं रहा, बशर अल-असद इज एक्साइल्ड, ये भी इसराइल की गेम थी। तो politically Russia is playing like on the sideline, लेकिन वेपन्स भी ईरान को सप्लाई कर रहा है, टेक्नोलॉजी, अमेरिकन बेसिस की इंफॉर्मेशन के कौन कहाँ है, उनके पर्सनल कहाँ हाउस कर रहे हैं, अटैक टारगेट्स की लोकेशंस वो चाइनीज मिलकर कर रहे हैं। तो आई वुड से रशिया इज काइंड ऑफ पुतिन हमेशा एक स्ट्रेटेजिस्ट रहा है, हर वॉर में, हर गेम में, वैसे जॉर्जिया की वॉर हो, क्राइमिया का जो टेक ओवर था, फिर रेफरेंडम कराकर रशिया के साथ बनाना, मतलब, और फिर जिस तरह से आईएसआईएस को से शिकस्त दी थी, सीरिया पे अपने पैर उसने जमाए। ही इज ऑलवेज बीन एन अपॉर्चुनिस्ट जो दूसरों की वेस्ट की गलतियां देखकर फिर अपनी स्ट्रैटेजी अलाइन करता है, एंड दैट इज द रीजन व्हाई इसका टेन्योर इतना लंबा चला है। somehow he's और ये delivering, रहेगा, he's making ये रहेगा, messages. ये कहीं नहीं जा रहा, अगले 20 साल भी यही है, क्योंकि रशियंस इससे बहुत खुश हैं, रशियंस बहुत खुश हैं पुतिन से, ठीक है। ये एक वही काफी देखिए गालिब, वही देखिए मिडल ईस्ट देख लें, जहां इन्होंने अपनी रेट लगाना चाहिए वेस्ट ने वहां तबाही की, तो ऑटोमेटिकली अब लोग डरे हुए, वो नहीं चाहते हमारा उनका मुल्क डिवाइड हो, फ्रैक्चर्ड हो जाए, अफगानिस्तान, सीरिया या इराक जैसा, लीबिया जैसा हाल हो, नहीं ट्रस्ट करते वेस्टर्न हेजेमनी को। तो जो और अभी देखिए, अभी ये देखें सारी मतलब जो है ना, सारी सिचुएशन में अभी देखें, हम बड़ी चीजें डिस्कस कर रहे हैं। फर्ज करें कि ये जंगें 2 खत्म हो जाती हैं और इसके बाद अमन होता है, फिर तालिबान का इलाज भी शुरू हो जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान की सपोर्ट चाइना और रशिया ने करनी है तालिबान को ख़त्म करने के लिए, और तालिबान का परमानेंट हल भी ये इधर से निकलेगा फिर इसके ख़त्म होने के बाद, ठीक है। तो आई थिंक सो कि ग्लोबल लेवल, क्योंकि देखें पाकिस्तान, चाइना, रशिया, इन सब की ये जो है ना, इसमें बहुत ज़्यादा मतलब जो है ना वो इनकी वो है कि पीस हो इस रीजन में, ताकि सेंट्रल एशिया से और रशिया जो है वो ईरान और पाकिस्तान के थ्रू गर्म पानियों से कनेक्ट हो जाए। तो ये सारा कुछ मौजूद है अपने तौर पे। अच्छा गालिब भाई, इफ regime change in Iran failed, what will happen to Iranians who celebrated the death of Khamenei? भैया, जो इरानियंस जिन्होंने ईरान के अंदर किया था ना, देखें, जिन्होंने बगावत की थी सारी, और जब ये इसराइल और इसकी तरफ से आ रहा था कि जी आप बगावत कर दें, ईरान ने ना काफ़ी उनकी भी लोकेशन हुई है, 40,000 बंदा बंद है, ठीक है। बहुत मुश्किल सिचुएशन है उन लोगों के लिए। दूसरा प्रॉब्लम ये है, आपको पता है कि ईरान में यूट्यूब और गूगल के ऊपर और जगहों पे एड्स चल रहे थे कि आप हमारे साथ इंटेलिजेंस शेयर करें ईरान से और हम आपको पैसे देंगे। वो एड्स को जब डिस्कवर किया गया तो वो ईरानियन गवर्नमेंट के अपने एड्स थे, वाह, ठीक है। तो उन्होंने वो एड्स वो इसलिए चला रहे थे कि वो उन पॉकेट्स को लोकेट करें के अंदर से दूसरी साइड के लिए काम कर रही हैं, जहाँ दो लोग काम करना चाहते हैं। तो कहते हैं कि उसकी मदद से भी बहुत दुनिया लोकेट हुई है ईरान में, जो कि कर रही थी ना इसराइल की तरफ से। तो वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के लिए हायरिंग का वो दे रहे थे, और जारी बात है कि आई थिंक कि थोड़ा सा ऐसा भी है कि सब कुछ तो नहीं, सब लोग तो नहीं होंगे लोकेट, मगर बहुत एक जबरदस्त चीज है जी अपनी। हाँ, मगर ये है कि एटलीस्ट उन्होंने कुछ पॉकेट्स ऐसी आइडेंटिफाई जरूर कर ली होंगी जो पोटेंशियल होंगी ऐसी, ठीक है। तो ये चीजें हैं जो वो भी कर रहे थे, और आईआरजीसी को असल में आई थिंक के ग्लोबल लेवल पे जानबूझ के अंडर एस्टिमेट किया जा रहा था कि दिखाया जाए कि ईरान कमजोर है, मगर हकीकत उसके बिल्कुल मुकम्मल तौर पे बरक्स निकली है कि आईआरजीसी का बड़ा कंट्रोल है। इवन के खामनाई जो अब आ गया, ये मुजतबा, ये उनकी मर्जी से है, उन्होंने बनाया इसको। ये अब एक
सारा तमाशा है, ये चलता रहेगा और ड्रॉप सीन इसका हो जाएगा। मुझे लगता है कि अगले 1 हफ्ते में अगर जंग ना लगी तो अमेरिका का जो वे आउट है वो खार्ग आइलैंड पे कब्जा है। मगर ज़ाहिर बात है कि खार्ग आइलैंड पे ईरान की भी बहुत ज़्यादा मिलिट्री वगैरह मौजूद है। तो लेकिन ये गालिब इनके रेडार्स भी अपना ऐसे नहीं चल रहे जैसे पहले हाँ, चल नहीं रहे चल थे। रहा एग्जैक्टली, और क्योंकि ये ट्रूप्स लैंड करते हैं वो अपने आप को एक्सपोज भी कर रहे हैं। अगर वो मिसाइल्स इसराइल तक 10 पॉइंट एक्यूरेसी से मार रहा है तो हाँ, वो अपने इन लोगों को, अब इनके जहाजों को, जो हेलीकॉप्टर, जो गनशिप हेलीकॉप्टर्स अगर वहां ट्रूप्स को ऑन ग्राउंड हाँ, लैंड हाँ, करवाएंगे तो वो बहुत भी मुश्किल है एक तरह से भी अटैक। हाँ, और खार्ग वाली बात बल्कि हो आज सकती है, तो मगर ये बहुत बड़ा एडवेंचर होगा असल में। ਇੱਥੇ ਹੀ सारा रिस्क है गालिब, आज ਇੱਥੇ ही वैसे सारा इसराइल ने बहुत बड़े हमले किए हैं। ईरान ने आज बहुत उसने मतलब 20 इनके बैलिस्टिक ऊपर मिसाइल नुकसान किया है। 2-2 टन वाले बॉम्ब्स के मारे हैं आज उसने, हाँ, और आपको आज पता है वो इनके बिल्कुल नहीं रोके जा सके। कि आज खार्ग आइलैंड पे को बॉम्बिंग भी की है उन्होंने। देयर सेइंग दे डिस्ट्रॉयड द हाँ, मिलिट्री एक टारगेट्स। वार्निंग, हाँ वार्निंग के तहत की थी। वार्निंग के तौर पे कि उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर जो था ऑयल का, ऑयल पाइपलाइन वगैरह को वो अभी नहीं हिट किया, कहेंगे हम नेक्स्ट हिट करेंगे अगर आपने ये स्ट्रेट ऑफ नहीं, वो हॉर्मुज को अमेरिका खोला हिट नहीं। नहीं करेगा मेरा क्योंकि असल में खार्ग नहीं आइलैंड करेगा। एक बड़ी यूनिक जगह है। नीचे से टनल्स हैं मेनलैंड ईरान से जो कि खार्ग तक आती हैं, जिनमें आप पूरी गाड़ियां लेके आ सकते हैं। और उन टनल्स जो कि समंदर के नीचे टनल्स है ना, ऐसा मुमकिन है कि उनके अंदर ही लोग हों IRGC। और मुझे नहीं, बिल्कुल सरप्राइज नहीं होगा कि कोई 10-15 हज़ार फौजी कम से कम खार्ग आइलैंड के ऊपर बैठा हो। तो 2000 अमेरिकी पैराट्रूपर्स भी आप उतार देना तो बड़ा मुश्किल होगा कब्जा करना। ब्लड बात होगा वैसे। अमेरिकन फौजियों की भी आप एक समझ लें कि बड़ी तादाद में अमेरिकी फौजियों को ਤੇ नुकसान। ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਦੋਸਤੀ ਰਾਗੇ ਹੋਈ ਹੈ ਬॉडी। हाँ, बॉडी काउंट ਤੇ भाई बहुत मुश्किल काम है ਇੱਥੇ ਤੇ मतलब ਉਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਇਰਾਨ ਵਰਗੇ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ, ਸੀਰੀਆ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ नहीं ਮਸਲਾ ਹੀ नहीं ਹੋਣਾ। देखो ना होने जिन अमेरिका च एक असूल है, जिसका फौजी बच्चा मर जाता है ना हाँ, वो फिर मुजाहरों में शामिल हो जाते हैं जाके। यस। और जब वो मुजाहरों में शामिल हो जाते हैं और वो जब जंग ऐसी हो कि जो कि यूजलेस है, चॉइस वॉर है, तो वो बड़ा मुश्किल है फिर उनको, जब वो लोगों के बयान टीवी चैनलों पे आगे पीछे सोशल मीडिया पे चलने लग जाते हैं तो अमेरिकी जो हैं वो फिर ये जो यूजलेस वॉर्स होती हैं उसके पीछे पड़ जाते हैं और वोट नहीं देते फिर। गालिब भाई यूक्रेन तो शायद सारे का सारा ही हो जाए, मतलब इस तरह तो क्या मतलब? मर गए हैं जो लोग? सारे पे रूस का कब्जा हो जाए। सारे पर रूस का कब्जा, मुझे क्यों नॉन कन्फर्म, क्या लगता है आप? रूस का कब्जा किस पे हो जाए? पूरे आयरलैंड पे? यूक्रेन, पूरे यूक्रेन पे। यूक्रेन पे नहीं 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 देखिए नहीं होगा। यूक्रेन की जो वेस्टर्न पॉपुलेशन और जो सेंट्रल है ना वो ऐसा नहीं है कि वहां कोई है ही नहीं, वहां लोग हैं जो रशिया से हेट भी करते हैं। ईस्टर्न जो प्रोविंसेस है यूक्रेन के, डोनबास में जिसमें डोनेट्स्क और लुहांस्क रीजन है, क्राइमिया फिर जो आइलैंड है वो पूरा रशिया से, रशियन नेटिव रशियन स्पीकिंग पॉपुलेशन है जो शुरू से ही प्रो रशिया रही है। तो हाँ, रशिया हाँ, वो तो ये नहीं है कि जो- मैं आ गया हूँ, ये 2014 के टाइम से जब से वेस्ट ने कू के थ्रू जो गवर्नमेंट गिराकर पोरोशेंको को लाए थे उस टाइम से ही रशिया की यही डिमांड थी। अगर ये गवर्नमेंट वो नहीं गिराते, ठीक है ना, तो रशिया की डिमांड नहीं थी कि डॉनबास उसको चाहिए, क्राइमिया उसको चाहिए। रशिया ने क्राइमिया में मूव इसलिए किया क्योंकि प्रो रशियन गवर्नमेंट डिसॉल्व करके पोरोशेंको के ये लोग आए थे। Yes, तो आई वुड से कि द मोस्ट दैट रशिया वुड वांट इज जो ईस्टर्न पूरा ये है 25% रशिया और यूक्रेन का जो रीजन है वो ले लेगा। लेकिन उससे ऑब्वियसली व्हाट वुड रिमेन ऑफ यूक्रेन, मतलब आपका एक सोवियत यूनियन के टूटने के बाद एक कंट्री मिला है, आप वो भी नहीं संभाल सके। मतलब इनकी खुद की पॉलिसीज बहुत खराब भी रही हैं। जब ये पोरोशेंको आया था इन्होंने रशियन लैंग्वेज, मैं एक दिन बात भी कर रहे थे, आप बता रहे थे जो इनके करप्शन जी जी जी, इन्होंने गालिब इनकी लैंग्वेज रशियन बैन करने की कोशिश की, इन्होंने रशियन नेम्स बैन करने की कोशिश की, जैसे इनके नाम होते हैं ना पेट्रोस्की और इस तरह के वाई हटा करके आधा नाम लिखो कि रशियन नहीं लगे। इनकी पॉलिसीज बहुत एंटी रशियन रही है एंड दे शुड हैव रियलाइज कि आपका एक ईस्टर्न जो विंग है
country था that is very, मतलब the Russian speaking लोग हैं, and they had a softer side with Russia. भले वो पुतिन से आइडेंटिफाई करें ना करें, लेकिन एथनिकली तो वो अपने आप को रशियन ही रशियन कहते हैं ना, कल्चर और क्योंकि रशियन इवन के वो Yeah. रशियन आइडेंटिटी को भी बिलोंग करते हैं ना वो लोग। बड़ा मुश्किल है उस Yeah. सिनेरियो को डील नहीं नहीं, वो तो जो रूस के कब्जे में है वो तो रूसी है एक हिसाब से, आप ठीक है। हाँ डॉनबास वो ले वाले और लेगा, वो ट्रम्प भी एग्री कर रहा है कि वो डॉनबास ले ले, डॉनबास और आपका मतलब क्राइमिया आगे रखे। नहीं, रूस आगे नहीं आएगा। नहीं, आई डोंट थिंक सो। इनके पास इतनी ताकत नहीं है कि मेरे ख्याल है रूस के लिए मेन करेंगे। विक्ट्री की बात ये है कि उसके ऊपर जो बहुत पाबंदियां वो हटे, ठीक है, उसको आलमी मंडियों तक उसकी गैस जो है रशिया की, देखें अभी रशिया ने एक अभी यूरोप के साथ भी डिस्कशन शुरू करनी है नॉर्ड स्ट्रीम को दोबारा बहाल करना और चीजें, और रशिया 15 दिन और चल गई तो मादे हो जाएंगे सारे में। मगर ये होने दे, Nord Stream इसके आउटकम pipeline- पे भी सब कुछ डिपेंड करता है ना कि अभी अगले 15 दिन में होगा क्या, क्योंकि हाँ। अमेरिका को अभी वे आउट चाहिए, जब तक वो नहीं मिलेगा 15 दिन तब तो तक गल ये- इजी लग जाएंगे ना, हले तो उन्हें लियाने ने जी, अगर वो ट्रूप वाले गया था, वरना और बंब चलावन की तो जगह ही कोई नहीं रहेगी, उनकी तबाह करना है, जो कुछ करना है वो कर रहे हैं। हुन ले नहीं दे नहीं कि मैं वो गल नहीं कर रहा, वो तो हो हाँ, गया है। मैं जो बात कर रहा हूँ वो ये है कि अमेरिका को भी तो फेस सेविंग चाहिए ना, हाँ वो तो आप पहले अमेरिका बताया, फेस सेविंग के बगैर तो टेबल पे नहीं बैठ सकता ना। नहीं और जाएगा, दूसरी नहीं बात है कि इस साल इलेक्शन है, ठीक हाँ। है, ये बर्बादी है भाई। आया ये चल- ट्रम्प जितने रिपब्लिकन इस टाइम सेनेटर्स और कांग्रेसमैन है उन सबको अपनी अपनी सीटों की फिक्र पड़ी